हो गया. What do you understand by reversible and irreversible process? Done. Write the two necessary condition for system to be reversible. Click here this question. Write down two necessary conditions for the system to be reversible. So necessary conditions क्या reversible process के लिए? The process must be quasi static. The process must be quasi static. Quasi, QUASI, quasi static, so that system remains in thermal and mechanical equilibrium with the surrounding at every state. With the surrounding at every state. Second, the forces such as viscosity, friction should be absent. Viscosity, friction, the forces like the viscosity and friction should be absent. तो प्रोसेस कैसा होना चाहिए? इट मस्ट बी क्वाजी स्टैटिक, ताकि सिस्टम जो है थर्मल और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का, थर्मल इक्विलिब्रियम का मीन्स हीट जो है वो ट्रांसफर हो सके, टेम्परेचर सेम रहे, ठीक है. और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है कि हीट ट्रांसफर हो सके, ठीक है, विद द सराउंडिंग्स एट एवरी स्टेट. तभी वो क्या होगा, प्रोसेस कैसा होगा? रिवर्सिबल प्रोसेस होगा. दूसरा आया कि फोर्सेस जैसे विस्कोसिटी है, फ्रिक्शन है, ये फोर्सेस नहीं होनी चाहिए. तो ये दो नेसेसरी कंडीशंस हैं फॉर द सिस्टम टू बी रिवर्सिबल. नेक्स्ट है इन थर्मोडायनेमिक्स रिवर्सिबिलिटी इज ए बेस concept. Why? Thermodynamics mainly deals with efficiency with which a heat engine converts heat into work, with which a heat engine converts heat into work. No heat engine will have 100% efficiency. No heat engine will have 100% efficiency. Heat engine based on reversible process has the highest efficiency. Full stop. All other engines have lower efficiency than the limiting efficiency. Therefore, reversibility is base concept
in thermodynamics. This completes your second law of thermodynamics. Now chapter 13, unit 13 है ना? लिखा ही नहीं है यूनिट नंबर कौन सा है ये? हाँ 9 चल रहा है, अब ये 10 आया। Kinetic theory. Kinetic theory. इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। अरे आप पेजेस चेंज कर रहे हो, उसमें है ही नहीं नोट्स में, मैं क्यों लिखवा रहा हूं? मैं इसीलिए लिखवा रहा हूं, नोट्स में नहीं है। गिव द लॉ ऑफ डेफिनेट एंड मल्टीपल प्रोपोर्शंस। तो फर्स्ट है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। लिखना चाहते ही नहीं आप लोग। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, ए कंपाउंड हैज फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। A compound has fixed proportion by mass of its constituent। इसमें आ गया डेफिनेट प्रोपोर्शन, जिसमें क्या होगा, मास जो होगा, जो भी जिस भी पार्टिकल से कोई कंपाउंड बन रहा है, उसके जो पार्टिकल्स होंगे उनका मास क्या होगा, सभी का सेम होगा। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ठीक है। सेकंड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। Law of multiple proportions. When two elements combine to form two or more compounds, then the masses of one of the element which combined with a fixed mass are in the ratio of small integer, are in the ratio of small integer. सेकंड है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में कि जब हम दो एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, ठीक है, तो क्या होगा, मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट विच कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास,
ठीक है, ये रेशियो होगी स्मॉल इंटीजर की। नेक्स्ट है राइट द पोस्टुलेट ऑफ डेल्टन थ्योरी। राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ डेल्टन थ्योरी। डेल्टन थ्योरी के बेसिक पोस्टुलेट्स क्या हैं? फर्स्ट है, डेल्टन थ्योरी क्या बोलती है? फर्स्ट बोलती है एटम इज द स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मैटर। फर्स्ट पोस्टुलेट, एटम इज द स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मैटर। बंद हो गया। Atom is the smallest constituent of the matter. Second, atom of one element are identical. कोई एक एलिमेंट होगा तो उसके सारे एटम्स जो होंगे क्या होंगे? सेम होंगे। एटम ऑफ वन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। थर्ड, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। Fourth, small number of atom of each element combines to form a molecule of the compound. Fifth, atoms can neither be created nor be destroyed. Atoms can neither be created nor be destroyed. Neither be created nor be destroyed during any physical or chemical change. Physical and chemical change. Next question है, state Avogadro law or hypothesis. State Avogadro law or hypothesis. Avogadro law or hypothesis. Avogadro law or hypothesis. According to this law, equal volume of all gases under similar conditions of temperature and pressure contain same number of molecules. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 1 मार्क्स का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का, डिफाइन एवोगैड्रो नंबर एंड गिव इट्स वैल्यू। डिफाइन एवोगैड्रो नंबर एंड गिव इट्स वैल्यू। Avogadro number is the number of molecules. Avogadro number is the number of molecules in 1 mole of a substance. Number of molecules present in 1 mole of substance. वैल्यू होती है, एवोगैड्रो नंबर को n से लिखते हैं, वैल्यू होती है इसकी 6.023 into 10 raised to power 23 molecules per mole. Molecules per mole. तो कितने 1 मोल सब्सटेंस के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं उसको हम बोलेंगे एवोगैड्रो नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल और रियल गैस। ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल और रियल गैस। Ideal gas, a gas which obey gas equation and gas laws at all temperature and pressures, is called ideal gas. दूसरा रियल गैस, a gas which does not obey gas equations and gas laws at all temperature and pressures is called non-ideal or real gas. Is called non-ideal and real gas. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द रिलेशन बिटवीन pressure and mean kinetic energy of the gas. Give the relation between pressure and mean kinetic energy of the gas. तो इसमें क्या करेंगे हम, we know लिखिए, we know pressure of a gas is given by, निकाला हुआ है हमने, pressure of the gas is given by P is equal to 1/3 rho C square. ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से आपने डिवाइड कर दिया और 1/3
रो सी स्क्वायर। रो क्या डेंसिटी है गैस की, अब डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, बट रो इज मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, रो की जगह लिख दो मास अपॉन वॉल्यूम। तो 1/2 इंटू 2/3 m अपॉन v इंटू सी स्क्वेयर। थोड़ा अरेंज करके लिख दिया। और ये होगी आपकी एनर्जी। तो एनर्जी को आप लिख दोगे 1/2 m c स्क्वेयर अपॉन v, दिस इज द एनर्जी। ओके, इसको आप सीधे लिख दोगे 2/3 E। तो ये रिलेशन आ गया प्रेशर और, लिखिए वेयर E इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस, where E is kinetic energy per unit volume of the gas. Next question है, all molecular motions ceases at 0 Kelvin. Why? All molecular motions ceases at 0 Kelvin. Why? कि मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो चल रहे हैं, वो 0 केल्विन के ऊपर रुक जाते हैं, ऐसा क्यों? तो लिखिए काइनेटिक एनर्जी of the molecule is directly proportional to absolute temperature. काइनेटिक एनर्जी जो होती है मॉलिक्यूल की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर m जो है वो मास है मॉलिक्यूल का, ठीक है, c अगर उस मॉलिक्यूल के हम v नहीं ले रहे हैं या c ले रहे हैं वेलोसिटी, c आ गई वेलोसिटी, तो हाफ mc स्क्वायर, ये आ गई उसकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आ गई, ठीक है। और बोलता है काइनेटिक एनर्जी हमें पता है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। टेम्परेचर ज्यादा होगा मॉलिक्यूल ज्यादा फास्ट चलेंगे, टेम्परेचर कम होगा तो मॉलिक्यूल स्लो चलेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mc स्क्वायर, ठीक है, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब बोलता है 0 केल्विन, मतलब टेम्परेचर जब व्हेन T क्या हो गया, 0 हो गया, 0 केल्विन, ठीक है। T 0 हो गया तो इसकी ये वाली साइड क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। तो हाफ mc स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 0। तो यहां से हम क्या करेंगे, हाफ m को दूसरी साइड जाएंगे तो 0 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो वो क्या हो, c स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो c भी क्या आ जाएगा आपका 0, यानी कि वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। velocity will be 0। लिखिए therefore molecular motions ceases at zero Kelvin। molecular motions, all molecular motions stops या ceases at 0 Kelvin। next question है, what are the postulates of
molecular kinetic theory of gases. Hence find out expression for pressure exerted by the gas. तो पॉस्टुलेट्स लिखिए आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के. नंबर फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या है? assumptions बोलते हैं, ठीक है ना. फर्स्ट क्या है? अ गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ identical perfectly elastic molecules. Second, these molecules move in random directions. तो कोई भी बॉक्स है, इसके अंदर अगर मैंने गैस भरी हुई है, ठीक है ना, तो पहले तो बात हमने ये बोली कि जितने भी मॉलिक्यूल होंगे सभी आइडेंटिकल होंगे, बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है. उन बिल्कुल क्या होंगे? सेम होंगे. और कैसे होंगे? दूसरी बात क्या बोली मैंने? परफेक्टली इलास्टिक होंगे. परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, वो चीज हम यहाँ यूज करेंगे. तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं कैसे होंगे? परफेक्टली इलास्टिक होंगे. दूसरा बोला कि ये मॉलिक्यूल्स या रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं. बॉक्स के अंदर कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, इस तरह से, मतलब एक फिक्स जगह पे नहीं वो होते हैं, एक फिक्स डायरेक्शन में नहीं चलते हैं, वो रैंडमली मूव करते हैं, ठीक है. थर्ड है कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. Collision between the molecules and the walls of container is perfectly elastic, and the walls of container is perfectly elastic. ठीक है. जो मॉलिक्यूल जो है, अब गैस है, गैस तो कहीं भी होगी तो वो फैलेगी, है ना. तो जो वॉल है कंटेनर के जिसके अंदर उस गैस को रखा हुआ है, उसका जो मॉलिक्यूल का कोलिजन होगा उसकी वॉल के साथ, वो कैसा होगा? परफेक्टली इलास्टिक होगा. नेक्स्ट इज द पाथ ट्रेवल्ड बाय ए मॉलिक्यूल बिटवीन टू कोलिजन्स इज कॉल्ड free path. ठीक है. मॉलिक्यूल जो हैं, जब दो कोलिजन होंगे, जैसे एक मॉलिक्यूल आया दूसरे के साथ टकराया, फिर वो आगे चला गया, फिर वो किसी और के साथ टकराया, तो दो कोलिजन के बीच में जो पाथ जो ट्रेवल कर रहे हैं उसको बोलेंगे हम फ्री पाथ बोलेंगे उसको, ठीक है. अगर फिफ्थ है the time of collision between any two molecules is very small. 5 marks का क्वेश्चन है ये. is very small. नेक्स्ट है, मतलब कोलिजन बड़ी जल्दी जल्दी होते हैं, तो टाइम बिटवीन द टू कोलिजन इज वेरी स्मॉल, जल्दी जल्दी होंगे कोलिजन्स. अच्छा, लास्ट पॉइंट है, these molecule follows Newton law of motion. बॉक्स बनाइए.
इसका नाम रख दो कॉर्नर्स के नाम रख दो मान लेते बॉक्स की लेंथ क्यूबिक बॉक्स है लेंथ L तो इसकी ब्रेड्थ भी क्या होगी L होगी और हाइट भी कितनी होगी L होगी डन देखिए कंसीडर a cubical box which contains a gas. Let small m be the mass of each molecule. Small m be the mass of each molecule okay. नेक्स्ट लाइन में लिखिए C1 C2 Cn are the velocities C1 C2 Cn are the velocities of n molecules respectively. The time of collision हाँ हमने क्या किया हमने n मॉलिक्यूल्स ले लिए एक की वेलोसिटी C1 दूसरे की वेलोसिटी C2 तीसरे की वेलोसिटी C3 so on Cn are the velocity of n molecules ठीक है अब ये जो मैंने लिखा है U1 V1 W1 आगे लिखिए U1 V1 W1 are the components of C1 U1 V1 W1 are the components of C1 velocity C1 along x-axis y-axis and z-axis respectively. Then from figure it is clear that C1 क्या होगा C1 स्क्वायर क्या होगा U1 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर प्लस W1 स्क्वायर suppose a molecule strikes the wall of box along x-axis with velocity u1 तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस ये आ जाएगा आपका मोमेंटम क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी तो मास कितना है सभी का m है उस उधर वेलोसिटी कितनी है उसकी u1 है अब क्या होगा जैसे ये मॉलिक्यूल जाएगा इधर V1 ले लो इधर U1 लो जब ये मॉलिक्यूल इधर जाएगा इस दीवार के साथ टकराएगा फिर ये वापस आ जाएगा गया टकराया फिर क्या हो गया बाहर तो जा नहीं सकता टकराएगा फिर क्या होगा वापस आ जाएगा
तो लिखिए when molecule strikes wall, when molecule strikes wall, it rebound तो अब उसका मोमेंटम जो होगा वो एक्स एक्सिस से ऑपोजिट होगा. It rebound, therefore its momentum now माइनस mu1. उसकी वेलोसिटी ऑपोजिट हो जाएगी, तो साथ में क्या लगा दिया, ऑपोजिट के लिए क्या लगा दिया मैंने, माइनस साइन लगा दिया. ठीक है, हमने निकालना चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम आएगा इधर को जाने वाला मोमेंटम माइनस इधर वाला मोमेंटम. तो उधर को जाने वाला मोमेंटम क्या था, mu1 था माइनस, और उधर से वापस वाला मोमेंटम अभी हमने लिखा माइनस mu1. ठीक है, तो ये क्या आ गया, mu1 प्लस mu1 तो कितना हो गया 2mu1. ठीक है, ये चेंज इन मोमेंटम आ गया उस मॉलिक्यूल का जो इधर से उस दीवार पे टकराया, फिर वो वापस आया. तो जाती बार mu1 था, आती बार क्या हुआ, माइनस mu1 हो गया. वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई तो माइनस लगा दिया मैंने. ठीक है, चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, एक मोमेंटम में से माइनस करना दूसरे मोमेंटम को, तो क्या हो गया ऑटोमेटिकली प्लस होके 2mu1 आ गया. अब टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स. तो देखिए वेलोसिटी क्या होती है, v होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, मुझे क्या निकालना है, टाइम निकालना है. अब डिस्टेंस कितना उसने कवर किया बेटे, पहले यहां गया तो l किया, फिर वापिस आया, फिर l किया, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, 2l कवर किया. तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स लिखो. एक कोलिजन इधर हुआ ना दीवार के साथ, फिर उधर से वापिस आया तो इस दीवार के साथ होगा. तो दो कोलिजन के बीच में उसने कितना जो है वो टाइम लगाया, कितना टाइम लगा उसको दो कोलिजन होने में. ठीक है, तो वो टाइम, डिस्टेंस नहीं निकालना, टाइम निकालना. टू सक्सेसिव कोलिजन्स, तो वो कितना होगा टाइम, t निकाल लो. t क्या आएगा 2l, और वेलोसिटी क्या उस डायरेक्शन में, उसकी वेलोसिटी कितनी थी, u1 थी. तो हमारे पास टाइम कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू 2l अपॉन u1. ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. अब हमें क्या निकालना, मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालेंगे. इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम जो हमने ये निकाला अपॉन ये वाला टाइम. इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स. बिटवीन टू कोलिजन, तो वैल्यू पुट करो 2mu1 अपॉन 2l अपॉन u, और जो करता है उसको काटो. हो गया, वो प्रिंट भी निकाल दे. दो फोन आए थे ना, दो सर नाम कुछ एक सुशांत. अच्छा.
ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। तो क्या आया, 2mu1 अपॉन क्या था, 2l/u1। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये क्या आ गया, mu²/l, mu²/l। u नहीं आएगा, u1 आएगा। ठीक है, बहुत स्लो करवा रहा हूं। अब हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन उसको यूज करना है। ठीक है, तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है कि फोर्स जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है जिसकी वेलोसिटी कितनी है, u1 है अलोंग एक्स एक्सिस। वैसे तो उसकी c1 है, ठीक है ना, पर उसके अलोंग एक्सिस हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो वो कितनी u1 है। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, फोर्स देता है, और फोर्स क्या होती है, ma। फोर्स क्या होती है, ma होती है। ठीक है, तो वो अब अप्लाई करेंगे, लिखिए बाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, फोर्स निकालेंगे अलोंग एक्स एक्सिस। हम एक्स एक्सिस के अलोंग निकाल लेंगे, वाई एक्सिस के लिए और जेड एक्सिस के लिए बोल देंगे सिमिलरली। ठीक है, फर्स्ट मॉलिक्यूल के ऊपर लग रही है फोर्स, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं आप, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो हमारे पास नहीं है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी है, सॉरी टाइम, अपॉन टाइम। तो यहां पे आएगा हमारा mu1 स्क्वायर अपॉन l। आया समझ कैसे लिखा, कैसे, वैसे तो पेन से लिखा ना, अपंदिका सीरियल आ रही है। फर्स्ट मॉलिक्यूल के ऊपर जो फोर्स लग रही है, फोर्स होता क्या, F इजिकल टू ma। एक और फार्मूला था dv ओवर dt होता था, है ना, पर यहाँ पे L क्यों आ रहा है, जरा मेरे को ये देखना पड़ेगा। और u1 स्क्वायर, अच्छा t की वैल्यू उसने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दी है। चेंज इन, हाँ नहीं 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 ठीक है बेटे, चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये भी होता है F इज इक्वल टू डी पी वाई डी टी भी है ना, लीनियर मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम हमने निकाला था, वो यही आया था mu1 स्क्वायर अपॉन l। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं चेंज इन मोमेंटम के लिए, वो वाला नहीं कर रहे हैं, F इज इक्वल टू ma नहीं कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वाला यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा वो जो फोर्स लगाएगा उसको हम लिख सकते हैं, दूसरा मॉलिक्यूल x डायरेक्शन में mu1 स्क्वायर सेम ही लगेगी, डिस्टेंस भी उतना ही लगेगा। इसी तरह से आप फोर्स निकाल लो, nth x डायरेक्शन में लगाएगा, वो भी mu1 स्क्वायर अपॉन l ही आएगी। तो अगर हम नेट फोर्स निकाल लेंगे तो उसको कल करेंगे,
लेंथ ही है अभी ना। हमने कल फर्स्ट पार्टिकल जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा था वो कंटेनर की वॉल्स के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा था वो कैलकुलेट करा था, ठीक है। सेकंड पार्टिकल जो एक्स डायरेक्शन में जा रहा था वो कंटेनर की वॉल्स के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा था वो कैलकुलेट किया। इसी तरह से टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हमने कितने लिए हुए हैं, एन, ठीक है। तो हम एन पार्टिकल्स जो एक्स डायरेक्शन में जा रहे थे वो कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहे थे, किसके ऊपर, कंटेनर की वॉल्स के ऊपर। जो भी बॉक्स था उसकी वॉल्स के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहे थे किसी भी डायरेक्शन, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्स डायरेक्शन की, एक्स डायरेक्शन की। तो इस डायरेक्शन में यहाँ पे कंटेनर की वॉल के ऊपर फर्स्ट, सेकंड और टोटल थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एनथ, ठीक है। ये सारे पार्टिकल कितनी फोर्स लगा रहे हैं कल हमने यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है। अब हम टोटल फोर्स लिखेंगे। टोटल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो टोटल फोर्स को मैं लिख लूंगा एफ एक्स से, टोटल फोर्स मैंने लिख ली एफ एक्स से, और ये क्या होगी F1 एक्स प्लस F2 एक्स प्लस सो ऑन प्लस Fn एक्स, ठीक है। और F1 एक्स क्या था, m u1 स्क्वायर अपॉन l प्लस m u2 स्क्वायर अपॉन l प्लस सो ऑन। एन एक्स के लिए लिख सकते हैं m un स्क्वायर अपॉन l, ठीक है। अगर आप इसमें देखें तो एक चीज जो है वो कॉमन है, दैट इज m अपॉन l, सभी में है ना m अपॉन l, है ना। वी कैन टेक इट आउट, हमारे पास क्या आ जाएगा u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस un स्क्वायर। अच्छा, ये तो हमने क्या निकाल ली, एक्स डायरेक्शन में फोर्स। और फाइनली हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रेशर ऑन, प्रेशर निकालना है, प्रेशर ड्यू टू ए गैस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस, हमें प्रेशर निकालना है। तो अगर हमारे पास फोर्स आ गई तो प्रेशर हम निकाल सकते हैं, है ना। प्रेशर का क्या फार्मूला होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो हम एरिया जो है हमारा कैसा था, क्यूबिक था, क्यूब था, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी थी, L थी। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, L लेंथ का क्यूब, रेक्टेंगल का क्या होता है, एरिया होता है L स्क्वायर, क्यूब का एरिया क्या होता है L स्क्वायर, पर क्यूबिक बॉक्स है तो इसका क्या होगा वॉल्यूम L क्यूब, ठीक है। तो अब लिखेंगे हम प्रेशर, इन एक्स डायरेक्शन। तो प्रेशर एक्स डायरेक्शन में उसको लिखूंगा मैं Px एंड दिस इज Fx अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। और Fx अपॉन क्या आ जाएगा, ये L क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास Fx था क्या, m अपॉन l इंटू u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर
प्लस सोन UN स्क्वायर अपॉन साथ में क्या है ये नीचे L क्यूब है। नो 1 मिनट बेटे, प्रेशर जो आएगा, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, नॉट द वॉल्यूम। फोर्स अपॉन एरिया, तो L स्क्वायर आएगा, यहाँ पे L स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको हम अच्छे से लिख सकते हैं M अपॉन L क्यूब U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस UN स्क्वायर। अच्छा, ये तो आ गया प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस, इसको ले लो आप 1। अब हम देखेंगे कि हमने वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग ली थी v ली थी हमने, ठीक है, तो उसके वाई एक्सिस के अलोंग। तो अब हमने क्या किया, अभी प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस निकाला, फिर हमें प्रेशर अलोंग वाई एक्सिस निकालना है, प्रेशर अलोंग जेड एक्सिस निकालना, तीनों एक्सिस के। एक्स का निकाल लेंगे, सिमिलरली करके हम वाई का भी लिख देंगे और जेड का भी लिख देंगे, ठीक है। पर ध्यान आपने रखना है कि वाई एक्सिस के अलोंग आपने वेलोसिटी क्या ली थी, v ली थी, ठीक है, और जेड एक्सिस के अलोंग आपने वेलोसिटी ली थी कल w, ठीक है। तो अब लिखेंगे सिमिलरली therefore प्रेशर अलोंग वाई एक्सिस, तो वैसे ही लिखेंगे, यहां पे क्या आ जाएगा, पी वाई आ जाएगा, यहां पे पी वाई आ जाएगा, यहां पे m अपॉन एल क्यूब ही रहेगा, क्योंकि क्यूबिक बॉक्स है तो उसकी सारी साइड्स क्या होंगी, एक जैसी होंगी, है ना, उनका एरिया एक जैसा होगा, ठीक है। मास ऑफ मॉलिक्यूल सेम रहेगा, पर v डायरेक्शन में हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या होगी, वो अलग होगी। तो पहला मॉलिक्यूल जो होगा उसकी v1 होगी, दूसरे की v2 होगी, इसी तरह से nth की क्या होगी, vn होगी, ठीक है। तो हम वैसे ही लिखेंगे इसको, तो इस प्रेशर को कैसे लिखेंगे, P वाई m अपॉन एल क्यूब वैसे ही, और वेलोसिटी बदल जाएगी v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस vn स्क्वायर। अच्छा, इसी तरह से प्रेशर अलोंग जेड एक्सिस, वहां पे हमने वेलोसिटी क्या ली है, अलोंग जेड एक्सिस इज W ली है हमने। अगर आप डायग्राम को देखोगे, देयरफॉर प्रेशर अलोंग जेड एक्सिस क्या आ जाएगा, इसको लिखेंगे पी जेड m अपॉन एल क्यूब वैसे ही, और यहाँ पे क्या है, W1 का स्क्वायर प्लस W2 का स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस WN स्क्वायर। इसको ले लो आप सेकंड एंड यू कैन टेक दिस एज थर्ड। तो हमने तीनों एक्सिस तीनों डायरेक्शंस के अंदर हमने क्या किया, हमने प्रेशर को निकाल लिया। अब टोटल प्रेशर जो होगा पूरे कंटेनर के ऊपर, वो किसका सम होगा, प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस, प्रेशर अलोंग वाई एक्सिस, प्रेशर अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। सिंस गैसेस, राइट डाउन, सिंस गैसेस exerts
pressure in all directions, pressure equal pressure करो, equal pressure in all directions therefore मान लेते हैं Px इक्वल प्रेशर है तो Px Py के बराबर होगा, Py जो होगा Pz के बराबर होगा, इसको हम P मान लेते हैं। तो P क्या आ जाएगा? P होगा इन तीनों का मीन Px प्लस Py प्लस Pz अपॉन 3। ठीक है जी, यहां तक समझ आया? अब P की Px Py Pz की वैल्यू पुट करेंगे, m अपॉन L क्यूब था, है ना? यस, और इनका मीन है तो डिवाइडेड बाई 3 आ गया। Px लिख दो, क्या था? u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस सोन प्लस un स्क्वायर, ठीक है, प्लस m अपॉन l क्यूब v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस सोन प्लस vn स्क्वायर प्लस m अपॉन l क्यूब w1 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर प्लस सोन प्लस wn स्क्वायर। अब इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है? m अपॉन l क्यूब आ रहा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? m अपॉन l क्यूब, तो साथ में नीचे है क्या? 3 है तो 3l क्यूब आ गया। अंदर क्या बचा? आप क्या करेंगे अब? अंदर यही बचे ना हमारे पास। अब ये क्योंकि m अपॉन एल क्यूब हमने बाहर ले लिया, ठीक है? तो आप क्या करोगे? u1 वालों को इकट्ठा कर लोगे, ऐसे ढंग से लिखोगे आप। 1 वालों को आप इकट्ठा कर लोगे, कैसे? ध्यान से देखिए, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर, सॉरी v1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर, ठीक है? फिर आप लिखोगे, इनको गोल ब्रैकेट में रख लो, प्लस u2 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर प्लस सो ऑन, लास्ट क्या है? un स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर प्लस wn स्क्वायर। आप क्या करोगे? अब आगे लिखिए, लेट u1 v1 w1 इक्वल टू, इसको मान लो C1। इसी तरह से u2 v2 w2, ठीक है, इनके स्क्वायर को C1 स्क्वायर मान लो। इस तरह से आगे लिखेंगे u2 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर इज इक्वल टू C2 स्क्वायर। लिखो,
और इसी तरह से UN स्क्वायर प्लस VN स्क्वायर प्लस WN स्क्वायर, इसको आप क्या लिखोगे? हाँ, CN स्क्वायर। तो मेरी ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? मेरी ये इक्वेशन बन जाएगी m/3l क्यूब, क्या आ गया? C1 स्क्वायर छोटा हो गया ना, C2 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस CN स्क्वायर। ओके, अब आप क्या करेंगे यहां पे नेक्स्ट स्टेप में? मैं इसी में लिख रहा हूं, आप नेक्स्ट में लिखेंगे n से मल्टीप्लाई कर देंगे, n से डिवाइड कर देंगे। लिखिए डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई n, स्मॉल n। और स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। स्मॉल n से आपने मल्टीप्लाई किया, स्मॉल n से आपने डिवाइड कर दिया। अब ध्यान से देखेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि m इंटू n, m इंटू n को हम मानेंगे कैपिटल M की सारी गैस का मास। स्मॉल m क्या था? एक मॉलिक्यूल का मास था, ठीक है। टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं? n, तो m इंटू n क्या हो गया? सारी गैस का मास, ठीक है। और L क्यूब क्या है? वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। लिखिए लेट स्मॉल m इंटू n इज इक्वल टू कैपिटल M, mass of the whole gas in box, ठीक है। एंड L क्यूब को आप मान लोगे कैपिटल V, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। तो अब ये हम आपकी सारी इक्वेशन रिड्यूस हो गई, रिड्यूस होके क्या बन रही है? क्या निकाला आपने? प्रेशर निकाला। यहाँ पे क्या था आपका? स्मॉल m इंटू n था, ठीक है। वो क्या बन गया? कैपिटल M। नीचे क्या था? L क्यूब था, वो क्या बन गया? V। साथ में क्या लगा था? 3। और यहाँ पे क्या आ गया आपका? C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस CN स्क्वायर अपॉन स्मॉल n था। हम मान लेंगे ये क्या वेलोसिटी है ना? तीनों डायरेक्शन में C1 क्या थी? तीनों डायरेक्शन में C1 क्या था? U1 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर प्लस W1 स्क्वायर, है ना। मतलब वेलोसिटी x डायरेक्शन में भी, y में भी और z में भी, ठीक है। ये था, ये U2 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर था। ये क्या था? UN स्क्वायर प्लस VN स्क्वायर प्लस WN स्क्वायर था, ठीक है। हम क्या करेंगे? इस सभी का एक मीन बन गया इन सारी वेलोसिटीज का, ठीक है। उस मीन को कोई नाम दे देते हैं, ठीक है। लेट C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस सोन प्लस CN स्क्वायर अपॉन n इज इक्वल टू C स्क्वायर। कैपिटल C मान लेते हैं, C का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा? P इज इक्वल टू M अपॉन 3V इंटू C स्क्वायर। अब आपको पता है मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी होता है ना। तो आप लिखेंगे अगले स्टेप में लेट कैपिटल M अपॉन V इज इक्वल टू रो
डेंसिटी ऑफ द गैस, कैपिटल M अपॉन V इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द गैस। इसको आपने मान लिया रो, वहां पुट कर दो तो फाइनल आपका आ गया रो 1/3 रो कैपिटल C स्क्वायर। तो ये आपका होगा प्रेशर एक्सर्टेड बाय ये गैस। अगर डेंसिटी की टर्म में पूछा हो तो यहां तक करना है, और अगर आपका मास या वॉल्यूम की टर्म में पूछा हो तो आपने यहां तक करना है। क्वेश्चन में पूछ सकता है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस निकालिए, तो लास्ट तक जाओगे, और सिंपल पूछेगा कि प्रेशर निकालिए तो आप यहां तक करोगे। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। अब एक और क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि राइट डाउन हाउ इज द मीन काइनेटिक एनर्जी per molecule related to temperature, per molecule related to temperature। इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से भी पूछता है, व्हाट इज द काइनेटिक इंटरप्रिटेशन, व्हाट इज काइनेटिक इंटरप्रिटेशन of temperature। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स का कि जो काइनेटिक एनर्जी है टेम्परेचर से कैसे रिलेटेड है। कल हमने एक क्वेश्चन किया था कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है इट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। अब हमने उस चीज को क्या करना है, मैथमेटिकली प्रूव करना है। तो हेडिंग दीजिए काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो वी नो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, अभी निकाला, वी नो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज क्या था 1 कैपिटल M अपॉन V इंटू C स्क्वेयर। यही निकाला ना हमने, 1/3 M अपॉन V इंटू C स्क्वेयर। अब आप क्या करोगे, V को दूसरी साइड ले जाओगे, नीचे जो V है इसको दूसरी साइड जाके क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा। तो PV इज इक्वल टू 1/3 कैपिटल M C स्क्वेयर। ठीक है, तो यहां से आप हमारे पास क्या आ गया, PV इज इक्वल टू 1/3 MC स्क्वेयर आ गया। ठीक है, बट इसको ले लो आप 1, PV क्या होता है, बट 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए PV क्या होता था, PV nRT नहीं, वो n मोल के लिए होता था। 1 मोल के लिए RT होगा, n की वैल्यू 1 होगी, n मोल है तो nRT आएगा। ठीक है, PV इज इक्वल टू RT आ गया। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दो तो यहां से आपके पास क्या आ गया, RT इज इक्वल टू 1/3 कैपिटल M कैपिटल C स्क्वायर। कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखिएगा। अब
बट कैपिटल एम क्या है, स्मॉल एम इंटू कैपिटल एन, वेयर एन क्या है, एवोगैड्रो नंबर। मैं करवा चुका हूं, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन्ड इन 1 मोल ऑफ गैस, है ना। तो ये आ गया n, इसको हम वहां पुट कर देंगे m की जगह पे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, RT इज इक्वल टू 1/3 स्मॉल m कैपिटल N C स्क्वायर। कैपिटल N को दूसरी साइड ले जाओ, तो उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आके क्या होगा, डिवाइड होगा, RT अपॉन कैपिटल N इज इक्वल टू 1/3 स्मॉल m C कैपिटल C स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए, याद रखिए, बट कैपिटल R अपॉन N, ठीक है, ये होता है स्मॉल k, ठीक है, और स्मॉल k क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। तो R अपॉन N खत्म हो गया, इसकी जगह क्या आ गया, अब स्मॉल k आ गया। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, स्मॉल k इंटू टी इज इक्वल टू 1/3 स्मॉल m इंटू C स्क्वायर। हमें प्रूव करना है काइनेटिक एनर्जी, हमें प्रूव करना है काइनेटिक एनर्जी रिलेट करती है कैसे, टेम्परेचर से कैसे रिलेट करती है। तो हमारे पास यहाँ पे mc स्क्वायर तो है, c जो है वेलोसिटी है, mc स्क्वायर तो है, और 1/2 नहीं है। काइनेटिक एनर्जी कैसे बनेगा, 1/2 लगाने से, है ना। आप क्या करिए, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिखिए डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, तो आपके पास ये चीज आ गई। अब इसमें क्या करना है आपने, इस 3 को यहाँ डिनोमिनेटर में है, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है कि यहाँ डिवाइड होगा। तो अगले स्टेप में आपके पास क्या आ जाएगा, 3/2 kT इज इक्वल टू 1/2 mc कैपिटल C स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है, देयरफॉर यहां से हम बोल सकते हैं 3/2 k मैंने अभी बताया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, 3/2 भी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये सारी चीज क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो इसका मतलब t जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ mc स्क्वायर, और यही हमें कल हमने यूज भी किया था इसको। तो दिस इज द काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ। तो आप रिजल्ट में लिख सकते हैं, देयरफॉर मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस, मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द गैस। स्टेप वाइज करेंगे तो सिंपल है, प्रैक्टिस करना 2-3 बार इसको इकट्ठे से करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पिछला भी और ये भी इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
आगे है कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो इसको भी हमने उसी से स्टार्ट करना। वी नो pressure exerted by the gas P is equal to 1 by 3 capital M upon V into C square। यहां पे फिर से आप V को दूसरी साइड ले जाइए। PV is equal to 1 by 3 MC square। C कैपिटल है, बट फिर बोलोगे फॉर गैस PV इज इक्वल टू RT। N मोल हो तो PV इज इक्वल टू NRT होगा। PV इज इक्वल टू RT आ गया। अब PV की जगह क्या लिख देंगे आप? RT इज इक्वल टू 1 बाई 3 कैपिटल M C स्क्वायर। ठीक है, यहां से आप क्या करोगे, हमें निकालना क्या है? C निकालना है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस। हमें यहां से क्या निकालना है? C निकालना है। तो आप C स्क्वायर को एक साइड रहने दो, मैं C स्क्वायर को एक साइड रहने देता हूं। ठीक है, C स्क्वायर एक साइड रह गया तो 3 क्या था, यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ मल्टीप्लाई होगा, M यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ डिवाइड होगा। तो 3RT अपॉन M। टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो C इज इक्वल टू अंडर रूट 3RT अपॉन M। बट फिर वैसे ही वही चीज लिखनी है, बट कैपिटल M जो है वो क्या है? स्मॉल m, एक मॉलिक्यूल का मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। साइड में लिख लो वेयर n इज एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो कैपिटल M की जगह क्या लिख दोगे? स्मॉल m इंटू कैपिटल N। तो C क्या आ गया आपके पास? अंडर रूट 3R कैपिटल T अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल N। ठीक है, बट आपको पता है कैपिटल R अपॉन कैपिटल N एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट स्मॉल k। अभी किया, लिखिए बट कैपिटल M अपॉन कैपिटल N, नहीं स्मॉल m, नहीं R अपॉन M, स्मॉल k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा? फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा? C निकाल रहे हैं हम। C इज इक्वल टू अंडर रूट 3 स्मॉल k R अपॉन N, हाँ स्मॉल t कैपिटल T अपॉन स्मॉल m आएगा। दिस इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द
गैस, डोर बंद कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम find degree of freedom of diatomic gas? We did it already last unit में, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और ट्राइएटॉमिक गैस के लिए हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट किए थे, वहां से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो। नेक्स्ट है, व्हाट इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी? What is law of equipartition of energy? ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है? राइट डाउन, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when a system is in thermal equilibrium, when a system is in thermal equilibrium, then total energy of the system is equally distributed among various degrees of freedom, and the energy associated with each degree of freedom per molecule is 1/2, write on this, 1/2 small k into T, capital T. तो दिस इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कि जब भी कोई सिस्टम है, अगर वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो टोटल एनर्जी जो होगी उस सिस्टम की हर डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है, अमंग इट्स डिग्रीज, वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ एनर्जी जो एसोसिएटेड होगी वो कितनी होगी? हाफ स्मॉल के इंटू कैपिटल टी। हम क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल ले लेंगे गैस का जिसका मास कितना है, स्मॉल m है, और जो मूव कर रहा है वेलोसिटी स्मॉल v के साथ। राइट डाउन, कंसीडर ए मॉलिक्यूल ऑफ मास small m of a gas moving with velocity v, then kinetic energy of molecule is given by इसको E मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी को, और आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, 1/2
मास कितना है, स्मॉल m है, मूव कर रहा है स्मॉल v वेलोसिटी के साथ, तो ये काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई इसकी, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, अब v जो है, अगर v कोई वेक्टर है, ठीक है, तो इसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट vx होगा, y में कंपोनेंट vy होगा, और z एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट vz होगा। ठीक है, तो हम तीनों डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट्स जो उसको लिख लेंगे, तो हमारे पास v स्क्वायर क्या आएगा, 1/2 स्मॉल m vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। हमने ये नहीं बताया वो मॉलिक्यूल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, हमने बोला ओनली मूविंग विद वेलोसिटी स्मॉल v। ठीक है, अब आप क्या करिए, 1/2 m को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/2 m vx स्क्वायर प्लस 1/2 m vy स्क्वायर प्लस 1/2 m vz स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास ये चीज आ गई। अब अगर गैस जो अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो काइनेटिक एनर्जी की जो एवरेज वैल्यू होगी वो हम निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी की क्या निकालेंगे, एवरेज वैल्यू। तो लिखिए, फॉर ए गैस विच इज इन thermal equilibrium, then average value of kinetic energy will be हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं इस चीज को भी। ऑलरेडी इस चीज को हम निकाल चुके हैं। 3/2 स्मॉल kT आया था, मीन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर में। ठीक है, देन दिस थिंग विल बी इक्वल टू, एवरेज को मैं ऐसे लिख देता हूं E बार। ठीक है, 1/2 m vx स्क्वायर प्लस 1/2 m vy स्क्वायर प्लस 1/2 m vz स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू 3/2 स्मॉल k इंटू t। आप इसको चेक कर सकते हो, उस क्वेश्चन में उसका रिजल्ट आया था, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, वहां पे हमने किया था। Since all directions are equally preferred, therefore average kinetic energy in all directions will be equal okay, and the molecules during their motion in space has 3 degrees of freedom. Therefore, next line में, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल
per degree of freedom is half small k into t, कैपिटल T। अब ये क्या मैंने बोला कि हम तीनों सारी डायरेक्शंस को प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो आ रही है हमारी वो आ रही है 3/2 kT, ठीक है। डायरेक्शंस कितनी है? 3, ठीक है। अगर आप उन तीन डायरेक्शन उस 3/2 kT को 3 से डिवाइड कर दो, 3 डायरेक्शन में डिवाइड कर दो, तो हर डायरेक्शन में कितनी आई? 1/2 kT, 1/2 kT, 1/2 kT। क्लियर हुआ? तो यही हमें निकालना था कि जो एवरेज जो हमारी काइनेटिक एनर्जी आ रही है, या जो हमारी एवरेज एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 1/2 kT होगी।